Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you a very important topic because this is the most requested video because बहुत सारे students inform किया है मुझे that they cannot differentiate between the interchange associative and dissociative mechanism as well as the interchange associative and the associative mechanism. I hope I can make you understand. So now before we get started, if you're new to your channel, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon, and also if you like your video, to press the like button. Now let's get started. Now I hope इस चीज़ को बहुत ही easily explain करने के लिए I will explain you in a different way so that बहुत easy and interesting हो जाए. ठीक है. Now see students, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. सपोज कि आप सोचो कि आप वेकेशन में कहीं पे घूमने गए हो. अगर आप कहीं पे घूमने गए तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू गो टू एन होटल. जब आप होटल में जा रहे हो, देयर आर टू condition which may arise. Condition number 1, when you reach the hotel, you find out that first of all, पहले से ही all the rooms are booked. So there are no available rooms. सारे rooms booked हैं. तो फिर क्या होगा? Then what is going to happen? पहले एक room खाली होगा. You will wait. First, any one of the guests or the visitors, they will empty one room. The visitor will come out. ठीक है? Then only you are allowed to occupy the room. You are the incoming ligand, and then only you are allowed to occupy that room. Second condition क्या हो सकता है? One or two rooms or one or two rooms are empty. They are available. When some of the rooms or one or more than one rooms are available. तो फिर क्या होगा? You are not required to wait anymore. आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा. तो पहले आप क्या करोगे? So you are the incoming ligand. आपने पहले इन किया, है ना? फिर जब टाइम होगा, दूसरे जो विजिटर है जिन्होंने दूसरे रूम ऑक्यूपाई करके रखे हैं, वो उसके बाद निकल जाएंगे. बस यही तो है आपका एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव मैकेनिज्म. सी, दिस इज सो इंटरेस्टिंग. ऐसा अगर कोई कॉम्प्लेक्स है जो कि ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मतलब ऑल द रूम्स आर बुक्ड, राइट? ठीक है. फिर क्या होगा? उसे लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. तो उसमें पहले से जो लिगैंड है इट विल कम आउट, राइट? सो ये लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. उसके बाद इसमें कुछ कुछ रूम्स अवेलेबल होंगे. देन द इनकमिंग लिगैंड विल एंटर एंड इट विल रिजल्ट इन द डिसोसिएटिव मैकेनिज्म. सो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है दैट द कॉम्प्लेक्स हैज टू बी 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कंप्लीटली कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड. क्या कहा? इट हैज टू बी कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड. ठीक है. नाउ सेकेंड कंडीशन मैंने क्या एक्सप्लेन किया आप लोगों को? Second condition is an example of dissociative mechanism. When the complex is less than 18 electronic species, when the complex is less than 18 electronic species, मतलब कुछ rooms available है इसमें, उसके बाद पहले ही आपका incoming ligand will get coordinated to this, ठीक है? And then what will happen? Then after that, the outgoing ligand जो पहले से इसमें bonded था, that will come out. So this is the example of associative mechanism. And as I promised, मेरे सारे के सारे YouTube जो वीडियोस आने वाले हैं सब नोट फॉर्म में आएंगे so that students रियलाइज करें कैसे हमें पढ़ाई करना है, सिस्टमेटिकली पढ़ाई करना है. पढ़ाई जितना सिस्टमेटिक होगा उतना आपको कम पढ़ाई करना पड़ेगा. जितना कम पढ़ाई करना पड़ेगा उतना आप उस चीज़ को रिविजन दे सकते हो और मास्टर बन सकते हो उस चीज़ का. नाउ सी, so we were talking about the associative mechanism. So note one more thing that ये जो associative mechanism है, this is also the SN2 mechanism. क्यों? ऑब्वियसली अगर आप देखते हो तो वैनाडियम जो है, तो मैंने क्या कहा? द कॉम्प्लेक्स हैज टू बी लेस देन 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. सो ये जो VCO6, द फर्स्ट थिंग ऑल यू नीड टू डू द टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट. तो वैनाडियम इज हैविंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 and CO is 2 electron donor, you having 6. So this is turn out to be 7 electronic species. Obviously this is less than 18 electronic species. अगर ये लेस देन इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, फिर क्या होगा? जो इनकमिंग लिगैंड है, सो आई एम टेकिंग वन इनकमिंग लिगैंड EPH3. सो
it has to be a ligand, not a molecule. Keep it in your mind, क्योंकि यहाँ से जब हम बाद में पढ़ाई करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिएक्टिव एलिमिनेशन, वहाँ पे मॉलिक्यूल यूज्ड होते हैं. So this is a ligand. Specifically, this is one incoming ligand. Because ये क्या है, लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन, तो कोई ना कोई इसका जो साइट है वो खाली है, इसलिए इनकमिंग लिगैंड इसमें एडेड हो सकते हैं. इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस. और उसके बाद सेम स्टोरी, जब आप गए थे वहाँ पे होटल में एक रूम खाली था, आपने वो ऑक्यूपाई किया. लास्ट में जो पहले से ऑक्यूपाइड वाला रूम था, वो जो विजिटर था, दैट विल कम आउट and will result in the formation of the product. Clear? Very interesting. So this is an example of associative mechanism, and this is the SN2 mechanism. So substitution nucleophilic bimolecular mechanism. Now let us explain the dissociative mechanism. The same story. पहले क्या है, पहले ये जो मैंने कहा दिस इज SN1 मैकेनिज्म. और पहले क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका सारे के सारे रूम्स बुक्ड है, मतलब ऑल ऑफ देम आर कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड. सो आयरन इज हैविंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 5 into 2 is equal to 10. This is 18 electronic species. So this is coordinatively saturated. दिस इज कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड. तो सारे रूम्स आपका बुक्ड है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सो यू हैव टू वेट. पहले एक विजिटर को it will come out, so one of the ligands will come out, resulting in the formation of FeCO4, and तो फिर ये हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड. अब एक रूम खाली हो गया. अब जो इनकमिंग लिगैंड है, यहाँ पे इनकमिंग लिगैंड है आपका PPH3, है ना. so this is the incoming ligand. ठीक है, then it will occupy the vacant site. तो बन गया आपका प्रोडक्ट. आई होप आपको क्लियर हो गया dissociative mechanism and associative mechanism क्या है. And also you have to keep it in your mind that dissociative mechanism is SN1 mechanism. So SN1 mechanism, so इसका डिफरेंट नेम्स भी हो सकता है. इसे आप डिसोसिएटिव मैकेनिज्म भी बोल सकते हो, या SN1 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर मैकेनिज्म. ठीक है, कभी कभी when it is, or you can also name it as unimolecular mechanism, or you can also say that it depends on the concentration of the substrate. So it depends on the concentration of the reactant or substrate. तो क्वेश्चन ये डायरेक्टली डिसोसिएटिव मैकेनिज्म नहीं बोल के ऐसे भी कोई नाम इसे दे सकते हैं. सो ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम करते हैं अगेन. सो वही मैंने कहा कि ये ध्यान रखना है, द कॉम्प्लेक्स हैज टू बी coordinatively saturated, and this is one 18 electronic species. Just be very clear about it. It has to be 18 electronic species which undergoes nucleophilic substitution by the dissociative or SN1 mechanism. ठीक है, लेकिन अगर ये हो गया आपका डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, अगर कोई 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब लेस देन 18 है, मतलब वो 17 हो सकता है या 16, रादर लेस देन 18 भी आप बोल सकते हो. आप बोल सकते हो लेस देन 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. ठीक है, सो दैट इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू अंडरगो associative mechanism. Beautifully given in the note form. I hope this is going to be extremely beneficial to you. Now let's proceed. तो यही मैंने जो आपको कहा कि ये डिसोसिएटिव भी हो सकता है, नहीं तो ये SN1 मैकेनिज्म में भी आप इसे
डिनोट कर सकते हो, और नहीं तो यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म बोल के भी आप इसे डिपिक्ट कर सकते हो, और ऑल्सो यू कैन डिफाइन एज दैट इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट और द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हाँ, वही है, मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस इज CSI नेट दिसंबर 2014 part B question. So whenever you are going to solve any kind of question, the first thing what you are going to do is आपको ये देखना है that आपको ये देखना है दैट ये कॉम्प्लेक्स जो है कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ऑब्वियसली निकल जो है दिस इज न्यूट्रल, सो दिस इज हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 एंड CO4, तो 4 into 2 8, so this is 18 electronic species. So when it is 18 electronic species, it is very much clear to you that is capable of undergoing dissociative mechanism. So dissociative mechanisms are also named as point number 1 SN1 mechanism, point number 2 unimolecular, point number 3 it depends on the concentration of the reactant. It depends on the concentration of the reactant. So direct जो है वो लोग डिसोसिएटिव नहीं बोल के कोई भी नाम से इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वही दिया है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द सबस्ट्रेट। द आंसर इज बी। ठीक है, ओनली द रिएक्टेंट, ठीक है, नॉट एनी अदर ligand or anything, only the reactant. So this is nothing but this is a substrate or the reactant only. So this is SN1 mechanism also. Clear? I hope this is clear to you. Now let's proceed. इसके बाद अभी हम डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन द एसोसिएटिव मैकेनिज्म एंड द डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। मैंने क्या कहा था, एसोसिएटिव मैकेनिज्म में पहले जो आपका मेटल था और जो लिगैंड था, ठीक है, सिंस इट इज एसोसिएटिव देन व्हाट विल हैपन, इसके बाद one incoming ligand will come, ठीक है, and what will happen, पहले आपका जो है, I'm sorry, 1 minute. So this is the associative mechanism. So I'm considering Y as the incoming ligand, ठीक है, Y जो है this is one incoming ligand. ठीक है, तो पहले इनकमिंग लिगैंड जो है, इन द केस ऑफ द एसोसिएटिव मैकेनिज्म व्हाट विल हैपन, द इनकमिंग लिगैंड विल रिजल्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विद द मेटल, and then what will happen, first the incoming ligand it will result in the bond formation, complete bond formation हो गया, उसके बाद X will come out, ठीक है, and it will result in the formation of the product. So you see that पहले ही आपका इनकमिंग लिगैंड से बॉन्ड कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद आफ्टर दिस इज कंप्लीटली फुल्ली फॉर्म्ड, उसके बाद द MX बॉन्ड begins to break. Here lies the difference between the associative mechanism and the interchange associative mechanism. Interchange associative mechanism में क्या होता है, that even before आपका Y जो है यहाँ पे पहले ही फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन होने से पहले, कंप्लीट फॉर्मेशन होने से पहले बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने वही बहुत अच्छे से नोट में दिया है दैट द MX बॉन्ड जो है इट बिगिंस टू ब्रेक इवन बिफोर द MY बॉन्ड is completely formed. But always remember that bond making is more important because this procedure is more important. ये associative mechanism complete हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये complete होने से पहले ही break start हो गया, ठीक है। So यहाँ पे है आपका bond making. This is your bond making. And this is your bond breaking.
So before the complete formation of the bond breaking start हो जाता है। यही कंडीशन को हम डिफाइन करते हैं एज इंटरचेंज एसोसिएटिव मैकेनिज्म। बट वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट बॉन्ड मेकिंग जो कंडीशन है, यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग जो है ये इज मोर इम्पोर्टेंट। सो बॉन्ड मेकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लियर? सो आई अगेन रिपीट, तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे कंप्लीट फॉर्मेशन होने के बाद ही उसके बाद आपका बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हुआ। यहाँ पे बिफोर द कंप्लीट बॉन्ड मेकिंग यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरचेंज एसोसिएटिव मैकेनिज्म एंड एसोसिएटिव मैकेनिज्म। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में हमने देखा था दैट एमएक्स बॉन्ड जो है, पहले जो एमएक्स बॉन्ड है ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, इट विल ब्रेक and then it will result in the formation of my or it will get bonded to my। तो पहले ही आपको स्टेप नंबर 1 में आपका हो जाता है बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड देन स्टेप नंबर 2 में आपका बन जाएंगे बॉन्ड मेकिंग। ठीक है, सो ये बॉन्ड ब्रेकिंग कंप्लीट होता है और उसके बाद बॉन्ड मेकिंग होता है। ये कंप्लीट होने के बाद वंस द बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक्स, सो वंस दिस इज द बॉन्ड ब्रेकिंग इज कंप्लीट, देन ओनली द बॉन्ड मेकिंग takes place। Now this is the difference between the interchange dissociative mechanism। वहां पे मैंने कहा बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक होने से पहले ही बॉन्ड मेकिंग स्टार्ट हो जाता है। Even before the complete breaking of this, what happens? So this is your bond making, and this is your bond breaking। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही बॉन्ड ब्रेक कंप्लीट होने से पहले बॉन्ड मेकिंग स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन इन द नोट फॉर्म दैट my बॉन्ड पहले ही स्टार्ट हो जाता है जब x बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होने से पहले। बट यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर दैट बॉन्ड मेकिंग is more important than bond breaking। So this is the difference between the dissociative mechanism and interchange dissociative mechanism। Then obviously a question will come to your mind कि समझ में नहीं आया कि कौन कौन से कंडीशन में ये कोई कॉम्प्लेक्स will undergo interchange dissociative mechanism। The answer is, मैंने आपको कहा that bond break होने से पहले ही bond make हो जाता है। ये लाइन अगर बहुत अच्छे से आप सुनते हो तो आपको समझ में आ जाएंगे ये कंडीशन तब होगा जब mx bond is strong। जब mx बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है इसीलिए तो टूटने में टाइम लग रहा है, इतना ज्यादा टाइम लग रहा है दैट उससे पहले ही बॉन्ड मेकिंग स्टार्ट हो जाता है। सो the most important criteria to understand whether that complex is going to undergo interchange dissociative, for that you have to understand whether the mx bond is strong or not। Whenever the mx bond is stronger, then obviously it will take time to break, and even before the complete bond breaking, bond making will take place। ना यहाँ पे भी एक चीज मुझे आपको समझाना है, बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आपको पता है दैट अ कॉम्प्लेक्स देन टर्न्स आउट टू बी आफ्टर it becomes this octahedral complex, so it will result in the formation of two orbitals, one is T2g orbital and one is EG orbital। So EG orbital is above the barycenter and it is energetically high। Clear? And this is your barycenter, this is your barycenter, and it is above the barycenter and it is energetically high, as a result of which the one which is below the barycenter is energetically
लो एंड इज मोर स्टेबल इन नेचर। ठीक है, अगर कोई कंडीशन में व्हेन यू हैव नो इलेक्ट्रॉन्स इन Eg लेवल, इस कंडीशन में आपको स्टेबिलिटी अटेंड होते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई कंडीशन में जो एनर्जेटिकली हाई ऑर्बिटल होता है, उस एनर्जेटिकली हाई ऑर्बिटल, इन दिस केस आवर Eg, ठीक है, which is above the body center, which is unstable, अगर कोई इलेक्ट्रॉन Eg लेवल में रिसाइड नहीं कर रहे हैं, then that will result in stability, मतलब more number of electrons in the T2G level, ठीक है। So in that case, in very short form, you can say the electronic configuration which are having T2G3 and T2G6 electronic configurations, very important, ठीक है। Obviously T2G3 is stable because it's half filled and T2G6 is stable because जो energetically stable है, which is below the barycenter, ठीक है, which is bonding molecular orbital, and वो अगर completely filled हो जाते हैं, then it results in more stability, and from the formula like bond order which is equal to the stability, we can also define as stability is equal to number of electrons in the bonding minus anti-bonding divided by 2. So more and more electrons in the bonding molecular orbital, in this case the T2G, that will result in more stability. So this two electronic configuration कौन सा है? T2G3, always keep it in your mind, and T2G6, मैंने क्यों ऐसा है मैंने वो भी explain कर दिया है। So this two electronic configuration की वजह से आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी अटेंड करेंगे। और ऑलवेज रिमेंबर, एक कॉम्प्लेक्स तभी स्टेबल होता है जब उसके सारे के सारे बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो इंटरचेंज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म इन वन वर्ड, अगर आप मुझे बोलते हो मैडम कब इंटरचेंज डिसोसिएटिव होगा, मैं कहूंगी जब T2G3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, और नहीं तो T2G6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तब भी जाके आपको इंटरचेंज डिसोसिएटिव होगा। क्यों? बिकॉज इसके वजह से आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनेंगे। स्टेबल कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड टाइम लेते हैं ब्रेक करने में, इतना ज्यादा टाइम लेते हैं दैट कंप्लीट ब्रेक होने से पहले ही बॉन्ड मेकिंग स्टार्ट हो जाता है, और इस कंडीशन में आप कहते हो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरचेंज डिसोसिएटिव। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो फिर एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है। दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड्स। मैं एक यूली पेपर में क्वेश्चन आया था CSIR नेट दिसंबर 2015 जो है, ये जो क्वेश्चन आया था ये मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। सो देखो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आया था, दिस इज कोबाल्ट। अगेन यू कैन सी दैट कोबाल्ट इज हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाट, इफ यू कंसीडर दिस x एंड दिस इज -5, x -5 is equal to -2, therefore x is equal to +3. So कोबाल्ट +3 जो है, ये आप सबको पता है, कोबाल्ट +3 जो है ये क्या होता है, ये होता है T2G6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सारे के सारे बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फील्ड हो जाता है। इट रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मतलब हो जाता है आपका एक बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स को हम तब भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स में डिफाइन करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स को हम तब भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स डिफाइन करते हैं जब इसके सारे जो मेटल लिगैंड बॉन्ड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं दैट इट टेक्स टाइम टू ब्रेक, और ब्रेक होने में इतना टाइम लग जाएंगे दैट उसके पहले ही बॉन्ड मेकिंग विल टेक प्लेस, बॉन्ड मेकिंग विल टेक प्लेस बिफोर complete bond breaking. सो आई होप इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता है इंटरचेंज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। सो द आंसर इन दिस केस इज गोइंग टू बी इंटरचेंज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म।
क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नाउ अभी मैं और एक एग्जाम्पल करूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। दिस इज CSIR नेट 2012 जून 2012 पार्ट बी का क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने दिया है NiCO4। सो NiCO4 दिस इज वेरी मच नोन टू अस। सो निकल जो है वो D10 हो जाएंगे एंड दिस इज 2 into 4, सो दिस इज 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। जो भी 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म अंडरगो करते हैं, डिसोसिएटिव और नहीं तो इंटरचेंज डिसोसिएटिव। लेकिन यहाँ पे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज D10। D10 मतलब क्या है आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। D10 मतलब Eg लेवल में इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G6 Eg4। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड सिंस इट इज 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट विल अंडरगो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म एंड सिंस इट इज 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट विल अंडरगो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म and since the electrons are also residing on Eg level which is energetically high, which is above the body center, which is antibonding in nature, which is antibonding molecular orbital, and therefore it will not undergo interchange dissociative and therefore it will undergo dissociative mechanism. आई होप आपको क्लियर हो गया बहुत अच्छे से कंसेप्ट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म एंड इंटरचेंज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। क्लियर? अभी मैं थोड़ा सा कुछ और नोट फॉर्म में मैं दिया है, मैं कुछ और आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरचेंज डिसोसिएटिव बिकॉज अगेन यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द कोबाल्ट इन प्लास्टरी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब T2G6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड Eg0। सो दिस इज अ वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएंगे, द मेटल लिगैंड बॉन्ड इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग and it will take time to break and it will result in interchange dissociative mechanism. ना यहाँ पे ये बताए गए हैं, अगर हम थोड़ा और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, अगर आप अमोनिया को रिप्लेस करते हो by any sterically hindered bulky ligand, like if you replace this with this which is bulky, और since it is undergoing dissociative mechanism, फिर क्या होगा, तो ये अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है एंड दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर 2, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर 2, तो if you replace the ammonia with another bulky ligand then what will happen, obviously this complex number 2 will undergo dissociate mechanism at a much faster rate. कितना, it takes place 22 times faster, क्योंकि अगर कोई स्टेरिकली हिंडर्ड कॉम्प्लेक्स है और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, अगर कोई स्टेरिकली हिंडर्ड है, अगर कोई स्टेरिकली हिंडर्ड कॉम्प्लेक्स है, in order to get rid of this extra steric strain, the dissociative mechanism will become, the rate will become faster rate. Clear? The dissociative mechanism will result in faster rate, क्योंकि पहले वो खाली होके शांत हो जाएंगे, it will come out of the steric strain and then what will happen, the incoming जो ligand है it will take its place. Now the same condition, अगर same complex, अगर कोई sterically hindered complex अगर associative mechanism के थ्रू जाना चाहते हैं तो वो sterically hindered complex, if वो sterically hindered complex associative mechanism होगा, if it undergoes, if another example अगर लेते हो, if it undergoes associative mechanism then what will happen, if it undergoes, one minute, sorry, if it undergoes associative mechanism the reaction rate will become slow, क्योंकि एसोसिएटिव अगर वो ऑलरेडी स्टेरिकली हिंडर्ड है, क्योंकि पहले इसमें लिगैंड ऐड होगा, तो एक ऑलरेडी स्टेरिकली हिंडर्ड कॉम्प्लेक्स में अगर लिगैंड ऐड होगा इट विल अगेन इंक्रीज द स्टेरिक स्ट्रेन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द रिएक्शन विल स्लो डाउन। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है इन द नोट फॉर्म, इफ द सेम रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू associative mechanism interchange associative, the rate of the reaction would
be opposite, matlab would be slow, because the increased steric repulsion of the incoming ligand would be expected to slow the reaction. So I hope I am successful in making you understand. So if you actually appreciate my videos, please do press the like button. This actually encourages us a lot, and thank you for watching our video. Thank you.